Hello everyone. Today we are going to start chapter number 5, continuity and differentiability. There are two topics. First is continuity and second one is differentiability. Actually continuity is a part of the limit, right? तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे continuity पर. When we can say the function is continuous. So there are so many illustrations for the continuity, right? See. If I say your age is continuously increasing with respect to time, your age is continuously increasing with respect to time. So this is called continuity. So how can we say the function is continuous or not? So there are more than two ways. First is this, your age is continuously increasing. Second one, the function whose graph is continuous means not break in any interval is called continuous function. Like you know the integer part function. The integer part function is breaking at every integer part function is breaking at every integers, and therefore it is not continuous function on z or all the integers. It is not continuous at all the integers. But when we see the graph of line y is equal to mx plus c, so this line or this function is continuous at all the points because it is continuous graph. कहीं से भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है. ग्राफ अगर ब्रेक होता है तो ही वो डिसकंटिन्यूअस बनेगा, अदरवाइज इट विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन. तो एवरी टाइम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट? सो देयर आर सम कंडीशंस. वहीं से हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं. लेट f be a function defined on open interval AB for all C belongs to open interval AB. This is the first definition. So we are talking for all the points which are in this interval. For all C belongs to open interval AB, if FC equal to limit x tends to C fx, then f is continuous at x equal to C. So this is the pure definition for the continuity. If fc is equal to limit x tends to c fx, then f is called continuous function at x equal to c. अब यही डेफिनेशन मैं आपको दूसरे वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 11th में हम पढ़ के आए कि व्हेन वी कैन से द लिमिट एग्जिस्ट. लिमिट का एग्जिस्टेंस है ऐसा हम कब बोल सकते हैं भाई? व्हेन इट्स राइट लिमिट एग्जिस्ट, लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट and both are equal. When its right limit exists, left limit exists and both are equal, then we can say the limit is exist. तो यहाँ पे इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस होने के लिए फंक्शन की राइट लिमिट का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए, लेफ्ट लिमिट का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए और इनकी वैल्यू एफ सी के जितनी होनी चाहिए. तो इन अनदर वे how can we say? So second method, let f be a function defined on open interval AB for all C belongs to open interval AB. First, FC exists. Second one,
its right limit exists means limit x tends to c plus fx exists. Third one, limit x tends to c minus fx exists. And the last and fourth condition, fc equal to limit x tends to c plus fx equal to limit x tends to c minus fx, then f is called continuous function at x is equal to c. Then f is called continuous function at x is equal to c. Clear point? Okay. Now, algebra of continuity. There are some working rules, वो भी हमें देखना है कि वो किस तरह से अप्लाई किया जाए. बिकॉज कंटिन्यूटी इज अ लिटिल आइलैंड, उसके खुद के कुछ रूल्स है, वो रूल्स हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. सो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी. Algebra of continuity, right? If f and g are continuous and x is equal to c, then if f and g are continuous at x is equal to c, then first f plus or minus g is continuous at x is equal to c. Second one, f into g is continuous at x is equal to c. Third one, f upon g is continuous at x equal to c. And fourth one, if k belongs to R, then kf is continuous at x is equal to c. तो आपको ये भी याद रखना है, राइट, कि ये these are the algebra of the continuity. If f and g are continuous, f plus g is continuous, f minus g is continuous, f into g is continuous, f upon g is continuous. Also, if k belongs to R, then kf is also continuous. Getting my point? Now, अभी आपको कुछ फॉर्मूले लर्न करनी है. थोड़ी बहुत आप 10th 11th में पढ़ के आए हो, बाकी की जो फॉर्मूले है वो 12th के लिए सबकी प्रूफ है, पर एग्जाम में कभी भी वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि थियरी एग्जाम में आएगी नहीं. फिर भी फॉर योर नॉलेज, अगर आप देखना कि सीखना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक में गिवन है. अगर वहां पे समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू. बट अभी तो ये प्रूफ देखने के बाद भी आपको सारी फॉर्मूले लर्न बाय हार्ट करनी पड़ेगी, राइट. सो आई एम गिविंग यू सम फॉर्मूले. ये आपको इन एवरी लेक्चर 5 टाइम्स लिखना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए द फर्स्ट स्टेप इज दैट कि फॉर्मूला आपको लर्न होनी चाहिए, वरना एक स्टेप भी डिफरेंशिएशन का आप चढ़ नहीं पाओगे. नॉट अ सिंगल स्टेप, राइट. सो देयर आर सम फॉर्मूले. ये सारी फॉर्मूले आपको एवरी लेक्चर में 5 टाइम्स मुझे सबमिट करनी है, याद रखना, राइट. फर्स्ट, d by dx
c is 0. The derivative of constant is 0. The derivative of constant is 0. Second one, d by dx x raised to n is n x raised to n minus 1. The derivative of algebraic function is n into x raised to n minus 1. Third one, d by dx sin x is cos x. Fourth, d by dx cos x is minus sin x. Fifth one, d by dx tan x is sec square x. d by dx cot x is minus cos x square x. d by dx sec x is sec x into tan x. d by dx cosec x is minus cosec x into cot x. Ninth one, d by dx देखो टिल एट्थ तक आप 11th में पढ़ के आए हो. उसके बाद अभी जो नई फॉर्मूला आ रही है वो सारी की सारी 12th की है, याद रखना. और सारी फॉर्मूले आपको लर्न बाय हार्ट करनी है. समझो कि लर्न बाय हार्ट नहीं किया तो मैं यहाँ पे सम करूंगा, आपको समझ में आएगा. बट व्हेन यू स्टार्ट करने के बाद आगे नहीं जा पाओ. राइट. सो फॉर्मूला सबको लर्न बाय हार्ट करनी है, पक्का याद रखना. सो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. टेंथ वन, d by dx cos inverse x is minus 1 upon under root 1 minus x square. 11 d by dx tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. d by dx cot inverse x is minus 1 upon 1 plus x square. d by dx sec inverse x is 1 upon mod x into under root x square minus 1. d by dx cosec inverse x is minus 1 upon under root mod x into under root x square minus 1. देखो सारे c वाले में हमेशा माइनस आएगा. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, cosec का डेरिवेटिव माइनस cos, cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर, cos इनवर्स का माइनस 1 अपॉन, cot इनवर्स का माइनस 1 अपॉन, इवन दो cosec इनवर्स का भी माइनस 1 अपॉन. समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो नंबर 15, d by dx a raised to x is a raised to x log a base e. 16 d by dx e raised to x is e raised to x. 17 d by dx log x is 1 upon x. 18 d by dx root x is 1 upon 2 root x. तो बेटा इतनी फॉर्मूले आपको हर एक लेक्चर में
5 टाइम्स लिख के मुझे सबमिट करनी है, याद रखना, क्योंकि इसके बिना हमारा डिफरेंशिएशन चलेगा नहीं। 3 से 4 लेक्चर तक ये कंटिन्यूटी हमारा चलेगा। उसके बाद में व्हेन वी स्टार्ट डिफरेंशिएशन तब मुझे ये फुल इसकी जरूरत पड़ेगी, और अगर उस टाइम आपको याद नहीं है तो समझो ये बी लूजर इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आज से गया तो समझो इंटीग्रेशन जाएगा, इंटीग्रेशन गया तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, सब कुछ जाएगा। मतलब पार्ट 2 पूरा आपके हाथ से जाएगा, याद रखना। सो प्लीज राइट डाउन दिस और नथी बोल। In exercise 5.1, first question, prove that fx is 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5। ये हमें प्रूव करना है। मैंने आपको 2 डेफिनेशंस यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए दी हुई है। देखो दोनों डेफिनेशन फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सी फर्स्ट, इफ fc is equal to limit x tends to c fx, then f is continuous at x equal to c। The second definition is, उसमें फर्स्ट पॉइंट fc should be exist, सेकेंड वन एग्जिस्टेंस ऑफ fc होना चाहिए, सेकेंड वन लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx एग्जिस्ट, थर्ड वन लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx एग्जिस्ट, एंड फोर्थ वन fc equal to limit x tends to c plus fx equal to limit x tends to c minus fx, then f is continuous at x equal to c। तो ये दो में से कोई भी एक डेफिनेशन से आप वेरीफाई कर सकते हो या प्रूव कर सकते हो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। सो कब कौन सी डेफिनेशन हमें यूज करनी है, हमेशा याद रखो, अगर आपको फंक्शन एक से ज्यादा फॉर्म में स्प्लिट करके दिया हो, लाइक fx इज इक्वल टू फलाना व्हेन x इज लेस देन दिस, fx इक्वल टू ढिकना व्हेन x इज ग्रेटर देन दिस, इस तरह से एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड किया हो, या फिर इंटीजर पार्ट फंक्शन हो, या फिर मॉड्यूलस फंक्शन, 3 कंडीशंस याद रखना। इन 3 टाइप्स ऑफ सम्स वी विल डिस्कस लेफ्ट राइट लिमिट एंड द वैल्यू। हमेशा ये डेफिनेशन से ही हम आंसर लाएंगे, अदरवाइज वी विल यूज फर्स्ट डेफिनेशन कि इफ fc is limit x tends to c fx then f is called a continuous function, राइट। सो आपको यहां पे देखो ओनली वन फंक्शन भी है, सो डायरेक्ट फर्स्ट डेफिनेशन वी विल अप्लाई, राइट। चलो पहले जीरो के लिए हमें डिस्कस करना है, तो f0 is 5 into 0 minus 3 is minus 3 number 1। f0 c means constant, कभी किसके लिए, at x equal to 0 तो f0 लिया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx निकालूंगा मैं, अगर इसका भी वैल्यू -3 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल हो गए, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx equal to limit x tends to 0 5x minus 3। now see, denominator is not being 0 as well as numerator is not being infinitive। when denominator is 0 or numerator is infinitive, at that time we can't give the limit, but right now here no denominator 0, no numerator infinitive, so can give the limit। लिमिट देना मतलब x के बदले 0 टिकाना है, और जैसे ही मैंने लिमिट दी उसके बाद में वर्ड लिमिट लिखनी नहीं है। सो 5 into 0 minus 3 equal to minus 3 number 2।
Therefore, f0 equal to limit x tends to 0 fx, and therefore f is continuous at x equal to 0. सो ये इजी हो गया। x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 के लिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वेरी इजी, यू कैन फॉर x इक्वल टू -3 एंड फॉर x इक्वल टू 5. सो क्वेश्चन नंबर 2, examine the continuity for all these questions. In question number 2 आपको होमवर्क में करना है. Question number 3 में there are 4 questions. Verify, examine for the continuity for all these 4 sums. तो अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे ये हो रहा है कि भाई हमारी जो डेफिनेशन है उसमें जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है इज फॉर एट पर्टिकुलर पॉइंट, कि भाई एट x इक्वल टू सी, एट x इक्वल टू फलाना, एट x इक्वल टू ढिकना, वहां पे हमें ये प्रूव करना है कि इज कंटिन्यूअस. बट यहाँ पे नो नंबर इज गिवन, नो पॉइंट इज गिवन, सो वी हैव टू डिस्कस ऑन होल डोमेन R. सबके लिए डोमेन R दिया है, जिसमें ये नहीं दिया, x की वैल्यू 5 नहीं है, तो हम डिस्कस करेंगे R-5 के लिए, यहाँ पे डिस्कस करेंगे R-5 के लिए. तो किस तरह से किया जाए, लेट मी सी. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन A, fx is x minus 5. हमें C के लिए डिस्कस करना है. फॉर ऑल C belongs to R, fc is C minus 5 and फर्स्ट डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू c fx equal to limit x tends to c x minus 5. Now see, denominator is not being 0 as well as numerator is not being infinitive, so can give the limit. लिमिट जब देंगे तब लिमिट लिखेंगे नहीं, लिमिट देना मतलब x की प्लेस पे हमें c लिखना है, so c minus 5 number 2, and therefore fc equal to limit x tends to c fx. Therefore f is continuous at x equal to c. f is continuous at x equal to c. Now question number 2. question number 2 में हमें ये नहीं लेना है, मतलब 5 को छोड़ के हमें बात करनी है. so in B, for all c belongs to R minus 5. चलो, what will be fc? fc का मतलब होगा 1/c minus 5, number 1, and limit x tends to c fx equal to limit x tends to c 1/x minus 5. c की वैल्यू 5 होने वाली नहीं है, सो आप c के यहाँ x के बदले c रखोगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, मतलब मैंने लिमिट दे दी, सो क्या होगा fc एंड लिमिट आर सेम. देयरफॉर fc equal to limit x tends to c fx, and therefore f is continuous at c belongs to R minus 5. Right? Now number C. Third question, C. For all C belongs to R minus 5, FC will be C square minus 25 upon C plus 5 equal to C minus 5
into c plus 5 upon c plus 5 equal to c minus 5, and therefore it is number 1. Now the limit, and limit x tends to c fx equal to limit x tends to c square minus 25 upon c plus 5 equal to लिमिट x टेंड्स टू c, न्यूमरेटर में फैक्टर्स होंगे c प्लस 5 इंटू c माइनस 5 अपॉन c प्लस 5, चल बसे, सॉरी यहाँ पे मुझे x लेना है. आफ्टर गिविंग लिमिट वी विल राइट c, x प्लस 5 कैंसल. सो अब यहाँ पे मैंने लिमिट देनी है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने वाला नहीं है. सो कैन गिव द लिमिट. लिमिट देना मतलब x की प्लेस पे c लिखाओ. सो नंबर 2, एंड देयरफॉर fc इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx. देयरफॉर f is continuous at x equal to c. c belongs to r minus minus 5. क्लियर? तो यहाँ पे पॉइंट हमें नहीं दिया, इसलिए हमें पूरे डोमेन के लिए कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, याद रखना है सम. एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर डी, fx is mod x minus 5. fx is equal to, first of all we will remove the modulus. मॉड्यूलस रिमूव करने से क्या होगा? तो हमें दो केसेस मिलेंगे. When x is greater than or equal to 5, it will be x minus 5, and when x is less than 5, it will be 5 minus x. X less than 5, it will be x less than 5. Clear point? Now check. देखो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें ये करना है कि C के लिए हमें पूरे डोमेन के लिए डिस्कस करना है. नाउ सी, फॉर ऑल C बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल C बिलोंग्स टू R, FC इक्वल टू, चलो x इक्वल टू C. अब C की वैल्यू मैं 5 ले रहा हूं, तो C, अच्छा 5 के लिए हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर 5 के लिए हमें चेक करना है. अब देखो ये 5 से बड़े नंबर के लिए, 5 से छोटे नंबर के लिए तो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा ही. अब जहां पे ये कंडीशन ब्रेक होती है, हमेशा वहीं पे हमें डिस्कशन करना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस. तो हम 5 के लिए डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल f5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5, x इक्वल टू 5 यहाँ पे है, इक्वल टू 0. अब यहाँ पे राइट और लेफ्ट लिमिट भी डिस्कस करेंगे. मैंने इनिशियली आपको बताया था कि 3 टाइप के सम्स में हम सेकेंड पार्ट वाली जो डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे. विच 3 काइंड ऑफ सम? फर्स्ट, जिसमें फंक्शन हमें इस तरह से स्प्लिट करके दिया हो, या फिर मॉड्यूलस फंक्शन हो, या फिर इंटीजर पार्ट फंक्शन हो. तो ये 3 टाइप के सम्स में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. राइट? तो मैंने वैल्यू ले ली. अब राइट एंड लेफ्ट लिमिट. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x minus 5, मीन्स गिविंग लिमिट. क्यों? डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर भी इंफिनिटी नहीं हो रहा है. सो 5 minus 5 equal to 0. Number 2, it is number 1. Now the left limit for 5, and limit x tends to 5 minus fx equal to limit x tends to 5 minus x. So giving limit means 5 minus 5 is 0. Number 3, and therefore f is
continuous at x equal to 5 and therefore f is continuous for all r. ऑन आर आप लिख सकते हो क्योंकि बाकी के नंबर के लिए तो ये कंटिन्यूअस है, जहां से ये कंडीशन ब्रेक होगी वहीं पे लफड़ा है, अदरवाइज हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस रहेगा रहेगा रहेगा। तो आपको ये 3 सम्स होमवर्क में भी करने हैं, सारी फॉर्मूले 5 टाइम्स लिखनी है, सबमिट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। ओके, सी यू, बाय।